कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
Loving greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is a joy for me to be here to present the Word of God. Thank you for giving this wonderful opportunity to reach each and every one of you, house to house, village to village, city to city, through His Word, the Holy Bible. I want to say something about the power of prayer. The power of prayer is as great as God Himself. The Bible is a book of extraordinary accomplishments, a treasury of miracles. God performed many miracles in response to the prayers of His people. God grants the desires of the man who abides in Him. When they call Him, He will answer. Behold, here I am. The Christian life is an extraordinary life. God performed many miracles in response to the prayers of His people. Do you ask where the miracle of Bible days are? Do you long to see the power of God? Fall on your knees as we try to satisfy the desires of our dear ones. So the Lord also longs to fulfill the desires of His friends. See the examples. Elijah prayed and the rain stopped. He prayed again and it rained. According to James chapter 5 verse 17 and 18 and 1 Kings chapter 18 verse 42 and 45. Yes, the prosperity of the country is in the prayers of God's people. Next, Hezekiah prayed and 1,80,000 Assyrians were destroyed. Yes, prayer is a mighty weapon destroying enemies. Next, Nehemiah prayed and Jerusalem's broken walls were built up. Jerusalem's broken walls were built up. So prayer rises up spiritual congregation. Next, Paul and Silas prayed and the prison doors flew open. Yes, prayers breaks down barriers. Next, Joshua prayed and the sun stood still. So prayer brings even nature under control and makes it favorable to us. Next, Israel prayed and the people were reformed. So prayers cleanses God's people. Next, Samson prayed and received strength to tear the lions to pieces. Thus prayer stimulates strength and value. Next, the disciples prayed and get filled with the Holy Spirit. Hence, prayer fills us with His Spirit and gifts. Next, prophets prayed and received revelations about the future and indications about the present. Yes, prayer releases God's secrets. Next, Elisha prayed and life entered into the dead body. Hence, prayer quickens. David prayed and sung songs of worship, turning his talents into the blessing for others. Yes, prayer blesses. We can go on speaking of the power of prayer. People prayed and obtained the strength to be martyrs. They prayed and brought revivals and even shook kingdoms through prayer. How great is prayer power! Look at the Nehemiah, the great man
who built the broken walls of Jerusalem. God's people were revived through his ministry. The enemies were put to shame. What do you think is the foundation for his ministry? What was the preparation of his ministry? It is only his prayer life. When he learned that the walls of Jerusalem were broken, he sat down, mourned, fasted, and prayed. He never even dreamed that the Lord would commission him to build the walls of Jerusalem. But God chooses. God chooses only the praying man for challenging tasks. My dear brothers and sisters, today I am telling, prayer is most important, which brings a relationship with God. Our God wants everyone should ask him according to their needs. It is written in Matthew 21:22, anything you ask in my name, believing that it will be done. What did the apostles do before they decided on full-time ministry? As Jesus asked them, they were praying to the Lord of harvest to send out laborers into the harvest, according to Matthew chapter 9, verse 38. The Lord of harvest sent these same men who prayed and pleaded as workers. The apostles spent 10 days in prayer in the upper room before they launched out of the worldwide ministry. The Lord Jesus spent 40 days for fasting and prayers before the begin his ministry. My dear brothers and sisters, they never wait for receiving the Holy Spirit, receiving the gift from the Lord. Just go for the ministry, that's where they are failure. But once they receive according to the apostles, according to the Lord Jesus Christ, your ministry will never fail. Today's prayer warriors is tomorrow's revivalists. The ministries that are born in prayer, sustained in prayer, and end in prayer alone can face eternity fully. Christ accomplished everything through prayer. He prayed and the heavens opened. He prayed and heard his Father's voice. He prayed and overcame the devil. He prayed and fed 5,000 with the few loaves. He prayed and knew God's will. He prayed and overcame the flesh. He prayed and comforted those in sorrow. He prayed and suffered on the cross for others. He prayed and sent the Comforter down to his disciples. Yes, prayer brings heaven down to earth. We need not live a defeated life while we have the power of prayer in our hands. Miracles abound in a praying man's life. Prayer opens heaven and closes hell. Will you commit yourself to the life of prayer right now? Do it now. Psalmist says in Psalms chapter 3, surely he shall deliver thee from the snare of the fowls and from the noise pestilence. He shall cover thee, in verse 4, he shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. In verse 8, only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. In verse 10 he said, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Verse 7, for he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways.
Isaiah chapter 54 verse 17, it says, "No weapons that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is if me, said the Lord." Thank you for listening the word of God. My prayers will be with you. May the Lord bless you richly and comfort you and heal your sickness, provide your needs, and strengthen your bodies, and grow day by day in the Lord, and take the messages of the Lord to the others, that you saved and others also will save. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. God bless you. आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज ये अवसर मुझे मिला कि मैं प्रभु के नाम की बड़ाई कर सकूँ, मैं गवाही दे सकूँ। मेरा नाम गीता माझी और मैं संजय नगर कलीसिया से हूँ और मेरा घर अमलाई में है और मैं शहडोल ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने महिमा के लिए अलग किया। जो मैं परमेश्वर को जान सकी, पहचान सकी, ये मेरी आपकी खुद की वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना और बुलाया। मेरी गवाही है, जो सच में मैं प्रभु को पहले नहीं जानती थी। 2010 के पहले मैं प्रभु को नहीं जानती थी। मैं बहुत सारे भक्ति करने वाली, मैं बहुत सारा मेरा भक्ति का जीवन, लेकिन मैं सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती थी। और मैं उस दौरान बहुत दुख को, बहुत क्लेश को सहती थी। कभी भाई का, तो कभी बहन का, कभी तो बच्चों का, कभी पति का, कभी सासू माँ का, मतलब पूरे परिवार का दुख देख देख के मैं हर समय दहशत हो गई थी कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे परिवार में दो मातम हुआ, मेरे पापा का, मेरी बहन का। जो उस दुख को देख के हम बहुत ही डर चुके थे कि हमें क्या होगा, क्योंकि हमें यही डर था कि हमें कुछ, मतलब हर समय परेशान रहते थे। यही रहता था कि हम झाड़ फूँक करवाते हैं तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे भी कोई लाभ नहीं, कोई भी आशा नहीं। लेकिन अंत में जब हम 2010 में पहुँचे और उन दिनों में मेरा बेटा 2008 में जन्म दिया, और उस बेटे को जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो वो बेटा 3 दिन का ही हुआ और उसको तकलीफ़ें शुरू हो गई। तो झाड़ फूँक जादू कोई करके हम झाड़ फूँक करवाते थे, ठीक होता था। फिर 4 महीने के बाद फिर वैसे ही, ऐसे करते करते उसको 2.5 साल हो गया। कभी बीमार तो दवाई भी कराए, झाड़ फूँक कराए, ऐसे करते करते 2.5 साल हो गया। उसके 2.5 साल के बाद उसको इतनी ज़्यादा ही बीमारी ग्रस्त हो गई। और बीमारी क्या था, नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार, और सर्दी खांसी बुखार कोई दवाई काम नहीं करा। तो मैं यूपी की रहने वाली हूँ। हम लोग यहाँ पे पापा का सर्विस है, इसलिए हम लोग बचपन से यहाँ पे रह रहे थे। और जब मेरी शादी हो गई तो हम यूपी में अपने ससुराल में रहने लगे थे। वहाँ के सारे डॉक्टर्स को मैं अपने बेटे को दिखाई, और वहाँ भी कोई काम नहीं कर रहा, झाड़ फूँक सब कुछ करवा रहे हैं। मुझे समझ में आया कि मैं अब एमपी में जाऊँगी और वहाँ मैं इलाज करवाऊँगी। शहडोल ज़िले में मैं अपने अमलाई में जाऊँगी, वहाँ इलाज करवाऊँगी। ऐसा सोच के मैं वहाँ से आई। और वहाँ से जब आई तो मेरा बेटा और ही ज़्यादा परेशान, मतलब दवाई काम नहीं कर रहा। यहाँ भी इलाज करवाई, दवाई काम नहीं कर रहा, झाड़ फूँक काम नहीं कर रहा, वैद्यों के पास जा रहे, तांत्रिकों के पास जा रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहा। तब मैं दिन रात रोने लगी, दिन रात कराने लगी कि मेरा बेटा कैसे बचेगा, मेरा बेटा क्या होगा। और यही मैं विश्वास है कि मेरे समझ में आता था कि कोई एक परमेश्वर है, कोई एक मालिक है सबका। क्योंकि इनको मैं पुकारते पुकारते थक गई थी कि हे मेरे देवताओं, मुझे बचाओ। मैं बहुत पूजा करती हूँ, मैं बहुत भक्ति करती हूँ, मैं जो कुछ आप मांगोगे मैं दूंगी, क्या कमी है मुझे बताइए। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता था।
इस वजह से मेरे समझ में आने लगा कि अब कोई एक परमेश्वर जिसका सबका मालिक एक है, उसे मैं पुकारने लगी, हे प्रभु आप कौन हैं, आप कौन है प्रभु, मेरे बेटे को बचा लीजिए। और मेरा भी कुछ दिन के बाद नाभि में जख्म बन गया, पेट के नाभि में जख्म बन गया और उस जख्म से मैं बहुत पीड़ित होने लगी। मतलब बल्स आने लगे, मक्खियाँ आने लगी, मक्खियाँ बहुत काटती, चुभन करती, ये सब दर्द को सहती। और एक तरफ बेटे का, एक तरफ मेरे भाई का, जो बहुत ही दिमागी हालत में बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बहुत सारे शैतान से ग्रस्त था वो। उसको एडमिट करवाया गया, वो ठीक नहीं हो रहा था, झाड़ फूँक कराते ठीक नहीं हो रहा था। हम उसके लिए बहुत ही पैसे लगाए लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तब मैं फिर से किसी को बोलती थी, तो किसी ने मुझे मौलवी के बारे में बताया कि बुढ़ार में एक मौलवी साहब रहते हैं, उनके पास जाने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जब वहाँ पर गई और मौलवी से सारी बातें बताई, उन्होंने झाड़ फूँक किया, जो भी किया। और फिर मैं निकल के उनके घर से बस स्टैंड के पास आके खड़ी हुई और बस के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि जब बस आएगी मैं अपने घर को जाऊँगी। उसी समय ठीक एक आंटी अपने बिल्डिंग से मुझे देख रही थी, कुछ दूर में बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग से मुझे देख रही, पता नहीं उनका नज़र मेरे पास सामने कैसे आ गया। और उनके अंदर ये आवाज़ आ रही है, उनके दिल में ऐसी बात आ रही है कि इसे जा तू बता मेरे बारे में, इसे तू जा बता, ये मुझे ढूंढ रही है, ये बहुत दुख में है, मुझे जा मेरे लिए बता कि मैं परमेश्वर हूँ। ऐसा उनके अंदर ये बात आ रहा है। लेकिन वो आंटी चाही कि मेरे पास वो आके बताएं, लेकिन उनकी हिम्मत ना जुटी, क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं ये मुझे पहचानती भी नहीं है, कुछ बोल ना दे, कुछ डांट ना दे, मतलब ऐसा करके सोच के वो मेरे पास नहीं आई। और बस आई, और बस आने के बाद मैं अपने घर चली आई। फिर दूसरे सप्ताह मौलवी साहब बुलाए थे और फिर मैं शुक्रवार में मौलवी साहब के पास आई और सारी परेशानी बताई। फिर उन्होंने जो कुछ झाड़ फूँक किया और झाड़ फूँक करने के बाद फिर मैं वो ठीक बस के लिए वहीं पर खड़ी हो गई। फिर परमेश्वर ने उस आंटी को मुझे दिखाया और वो आंटी फिर से मुझे देख रही हैं और यही बात हो रही है कि जा आज तुझे बताना ही होगा। उनके अंदर फिर से वही बात आ रही है कि जा आज तुझे बताना होगा। वो मुझे ढूंढ रही है, मुझे ढूंढ रही है, बहुत परेशान है, जा तू बता मेरे बारे में। उस दिन आंटी के अंदर एकदम विश्वास बढ़ गया, हाँ मैं आज जाऊंगी प्रभु, अगर आप मुझे बोले मैं जाऊंगी, आज मैं बताऊंगी, या फिर मुझे गाली भी सुनना पड़े, अगर मुझे वो डांट भी दे या गाली भी दे तब भी मैं जाऊंगी, बता के ही रहूंगी आपके बारे में। और वो आंटी चल के मेरे पास आई और आने के बाद यही सवाल कर रही हैं, बेटा आप किस लिए यहाँ पे आए हैं। मैं बोली आंटी मैं बहुत दुख की मारी हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ और मैं इस मौलवी साहब के पास आई हूँ झाड़ फूँक के लिए। उन्होंने कहा बेटा आप जीवन भर इनके पास आएंगी और झाड़ फूँक करवाएंगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ करने वाले हैं, कुछ भी झाड़ फूँक से नहीं मिलने वाला है। मैं बोली आंटी ये यीशु मसीह कौन है। उस आंटी ने बताया यीशु मसीह परमेश्वर हैं, जो उनके नाम से प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं बोली आंटी मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरा भाई पागल बन गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन सारे डॉक्टरों को कुछ भी बोल रहा है, नर्सेस को कुछ भी बोल रहा है, पूरे हॉस्पिटल में तबाही मचाया है, क्या मेरा भाई ठीक हो जाएगा। बोले हाँ आपका भाई ठीक हो जाएगा, आप जाओ वहाँ पर। मैं विश्वास करी और मैं केवल अपने भाई का ही दुख बताई। दुख तो मेरे बहुत थे, लेकिन मैं उनको क्या बताती जो अजनबी थी, मैं बस उतना ही बता के। और उन्होंने कहा कि आप संजय नगर कलीसिया में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होता है और उसमें वहाँ पर पैसे नहीं लगते, केवल आपका विश्वास लगता है और विश्वास से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बोली आंटी ठीक है मैं जाऊँगी। मैं बहुत भ्रमित हुई हूँ आंटी, हर जगह मैं गई हूँ, मेरे लिए कोई भी द्वार बंद ही बंद है इस समय। कभी मेरे लिए कोई भी मेरे जीवन में आशा नहीं दिखी निराशा के अलावा। मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं अपने भाई के लिए बहुत ही पैसे खर्च करी हूँ। मैं सारी बात उनको बता के थोड़ा सा शॉर्ट में, और मेरे लिए फिर बस आ गया और मैं अपने घर को आ गई। और जब मैं घर को आ गई तो मैं ठान ली कि हाँ मैं इस परमेश्वर के पास जाऊँगी। ये संजय नगर चर्च है जो मैं जाऊँगी यहाँ पे, और मैं देखूँगी कि परमेश्वर वहाँ सब कुछ ठीक करते, मैं भी जाऊँगी। ऐसा सोच में अपने मन में बना रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं जाना है मुझे संडे में। तो सैटरडे छोड़ के मैं संडे में पूछते पूछते मैं संजय नगर में चर्च में गई, और मैं कभी संजय नगर गई भी नहीं थी।
बस में बैठी संजय नगर का, और मैं पूछते पूछते गई, और जब मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ सब लोग अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं। वैसा मैं भी सेम करने लगी, मैं भी प्रभु को पुकारने लगी, हे यीशु मसीह, अगर आप परमेश्वर हैं, आप प्रभु हैं, तो मैं पुकार रही थी कि प्रभु मुझे मिल जाइए, मिल जाइए। क्योंकि सच में जो बात आपको मैं भी नहीं बता पाई, जब मेरा बेटा बीमार था तो मैं उन दिनों में बहुत ही पुकारी थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। जो अभी मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उस समय भी मैं बोली कि प्रभु, जब मैं चर्च में गई और वहाँ पे मैं प्रार्थना करी तो प्रभु, मैं सच्चा परमेश्वर आप हैं तो आप मुझे प्रकट हो जाइए, आज मुझे मिलिए। क्योंकि जो मेरा परेशानी है, जो जख्म बना है, अगर वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे नाभि में ऐसा जख्म बना था कि जो मुझे कैंसर होने वाला था, मेरे मांस अंदर ही अंदर गल रहे हैं, तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया था कि ये जब नहीं ठीक होगा तो मेरा कैंसर का रूप पकड़ लेगा। और मैं इसी बात को बहुत डरी थी कि अब तो मेरे बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि मैं ही अब मरने वाली हूँ। तब मैं परमेश्वर को बोली, हे प्रभु, अगर आप परमेश्वर हैं, आप प्रभु हैं, तो मुझे बचा लीजिए, ये जख्म ठीक हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आप ही परमेश्वर हैं। क्योंकि फिर से किसी ने मुझे यहाँ पे भेजा है और फिर से मैं अब नई जगह पे आई हूँ और मैं भटक रही हूँ, मुझे कहीं सही जगह नहीं मिल रहा है, कहीं पर सच्चा परमेश्वर नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे डर लग रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रभु विनती करती हूँ कि अगर आप सच्चा परमेश्वर हैं तो मेरे जख्म को ठीक कर दीजिए। मैं जान जाऊंगी कि आप सच्चा ही परमेश्वर हैं और जीवन भर मैं आपकी आराधना करूंगी, आपसे प्रार्थना करूंगी। ये शब्द तो मैं जानती भी नहीं थी, आराधना क्या होता, लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि मैं जीवन भर आपको नहीं छोड़ूंगी, आपके ही नाम की महिमा करूंगी और मैं पीछे मुड़ के फिर नहीं देखूंगी। ये भी नहीं जानती कि पीछे मुड़ के फिर नहीं देखते हैं परमेश्वर को पाने के बाद, हम अपने पिछले जीवन को नहीं देखते, ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मुंह से ये सारे शब्द निकल रहे हैं और मैं रो रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मुझे बचाइए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं बहुत ही रोने लगी आत्मा में अपने, मैं किसी से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। और सच में परमेश्वर उस समय मुझे छुआ, और ऐसे छुआ जो मेरा जख्म था, जो मुझे दर्द हो रहा था, वो मेरा ठीक होने लगा। जो मक्खियाँ काट रही थी मुझे, वो बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हो रहा, लग रहा सब कुछ ठीक हो गया है।